Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is questions on operator. In my previous video, we had already discussed about precedence and associativity in C. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. So guys, in my previous videos, we had already discussed about each and every point on operator, right? And today's topic is questions on operator. So I have 4 to 5 question and हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं one by one. So let's start with first question. So guys, I have first question like this: int main, and we have has include studio.h. Constant int, this is small, a is equal to 10, printf %d plus a. Now what will be the output of this programming language? So pause this video and think about this programming example and solve itself. Okay, so guys, here we use plus a. That means, okay, plus is increment operator. This is the sign of increment operator, right? And if we use like this, then this is the pre-increment operator. We know that this is the pre-increment operator. And in the case of pre-increment operator, the value of variable is in first the value of the variable is increased by 1, then assign the value, right? So तो हम में से कितनों को ये लगेगा कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो कितनी आनी चाहिए? 11, right? But this is the wrong answer. Why? Because you can see that here we use constant keyword, right? constant keyword का यूज किया है. इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी भी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट कीवर्ड का यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि पूरे प्रोग्राम में जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. आप उसको चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने चेंज किया तो आपको एरर आएगा, राइट? तो यहां पे हमको सिंपली एरर मिलेगा, कंपाइलेशन एरर मिलेगा एक्चुअली, राइट? सो ध्यान रखना कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट कीवर्ड का यूज कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया हुआ है, दैट मीन्स कि वो वेरिएबल क्या बन चुका है? आपका कांस्टेंट बन चुका है. और पूरे प्रोग्रामिंग में उस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने उसे चेंज करने की कोशिश की तो आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा. क्लियर? ओके, लेट्स डिस्कस अनदर programming example. X is equal to 10, 20, 30 and printf %d x return 0, right? यहाँ पे लिख लेना अपने पास क्या है? has include studio.h int main. वो मैं स्किप कर देती हूँ, बाकी मैं ये बताती हूँ आपको. Okay, so here you can see that in this line we use comma operator and assignment operator. और जब मैंने कॉमा ऑपरेटर डिस्कस किया था तो इसी से मिलता जुलता एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी मैंने डिस्कस किया हुआ है. तो अगर आपने मेरी उस वीडियो को फॉलो किया हुआ है तो आप यहाँ पर देख के तुरंत से बता सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा. ओके, अगर नहीं पता तो फिर से डिस्कस करते हैं. X is equal to 10, 20, 30 and here the comma operator is used as a separator, right? Used as a separator. और अगर हम दूसरे वे में देखें तो we know that about precedence.
and the precedence of assignment operator is higher than comma operator, right? तो असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो होता है वो कॉमा ऑपरेटर से क्या होता है, हाई होता है। दैट मीन्स कि हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो पहले इवेल्युएट होगा। अब कंपाइलर इसको कैसे रीड करेगा, x इज इक्वल टू 10, 20, 30, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा यानी कि पहले एग्जीक्यूट होगा, तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 10। So what will be the output of this programming language? Obviously 10. So I hope कि आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। Let's discuss next question. Just give me a second. Okay. Int main int p is equal to 6 and int q is equal to size of plus p, right? And we need to print the value of p and q. Clear? P comma q, return 0. So you can pause the video and think about this programming example, right? Okay. So here we use operator. Which operator? Size of operator, right? We use size of operator. और मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में ऑपरेटर पढ़ाने से पहले ही बता दिया था जब मैं वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में भी एक क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो अगर आपने मेरी उस वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आउटपुट क्या होगा। अगर नहीं आता तो मैं फिर से बताती हूँ। लाइक हियर वी यूज साइज ऑफ ऑपरेटर, राइट? द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 6। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q is equal to size of plus p, right? And you think that plus p, that means कि p is equal to 6. Now update the value of p plus p. This is pre-increment operator, right? Now the value of p is equal to 7. Now the updated value of p is equal to 7. So here the value of p is equal to 7 and q, size of, that means we use integer. Here we use integer variable. So what is the size of integer variable? Is 4, right? This size of integer is 4. Now this is the output. हम में से कितने को लग रहा होगा कि this is the output, but this is the wrong. क्यों? अब इसको समझते हैं। क्योंकि मैंने जब साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि साइज ऑफ ऑपरेटर में जो भी कंडीशन होगी या फिर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो अपडेट नहीं होता है, वो अपडेट नहीं होता है, इवेल्युएट नहीं होता है। ध्यान रखना, साइज ऑफ ऑपरेटर की केस में अगर उसमें कोई भी कंडीशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी कुछ भी हो इसके अंदर, चाहे कोई भी आपने किसी भी तरीके का यहाँ पे एक्सप्रेशन हो, वो इवेल्युएट नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये भी प्लस p भी इवेल्युएट नहीं होगा। p की वैल्यू रिमेन वही रहेगी, यानी कि p की वैल्यू 6 है तो 6 ही रहेगी, ये इवेल्युएट नहीं होगी अगर हमने साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। तो इसके अंदर जितने भी, चाहे कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, वो इवेल्युएट नहीं होता है। क्लियर है? दैट मीन्स कि यहां पर p की वैल्यू क्या रहेगी, 6 रहेगी, ना कि अपडेट होगी। ये एक कंडीशन होती है साइज ऑफ ऑपरेटर की। क्लियर है? तो इसको नोट करके रख सकते हो आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइज ऑफ ऑपरेटर की ये। Let's discuss
discuss another example. Okay, so guys, we have a variable like integer a is equal to 10, b is equal to 25, c is equal to 10, and d is equal to 10, and one more variable e, and e is equal to a plus b multiplication c divided by d, right? And printf %d return 0. So this is the one of the programming example on precedence and operator. Clear? Here we use multiplication operator. This is arithmetical operator actually, and this is parenthesis bracket, right? So here actually we use arithmetical operator and parenthesis operator, right? So this is the equation, और इसको हम साइड में लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए बस, ठीक है? क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जो पहली बार इस तरह के प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे होंगे, तो उनको समझ में आसानी होगी. क्लियर है? सो इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंस, और मैंने पूरा चार्ट बनाकर आपको बताया था कि प्रेसिडेंस किसकी प्रेसिडेंस हाई होती है. 1 to 15 पॉइंट थे और सबका मैंने प्रेसिडेंस आपको बताया था किसका हाई होता है किसका लो होता है, और एसोसिएटिविटी भी मैंने डिस्कस की हुई थी कि किस तरह से होती है, राइट? एंड वी नो दैट दिस पैरेंथेसिस दिस ब्रैकेट हैज मोर हायर प्रेसिडेंस देन प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर. इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इवेल्युएट कौन होगा? ये ऑपरेटर फर्स्ट, राइट? तो इसके अंदर चाहे आपने कितने भी ऑपरेटर यूज किए हो, कोई भी ऑपरेटर, भले इसके बाहर के जितने भी ऑपरेटर है उससे उनका प्रेसिडेंस लो हो, तो भी वो पहले ही इवेल्युएट होगा. क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो हाई होता है, तो इसके अंदर जो भी रहेगा उसको हम पहले इवेल्युएट करेंगे. हाँ, अगर इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों ऑपरेटर रहते हैं, यहाँ पे तो केवल प्लस है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों ऑपरेटर होते तो हम फिर देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा. क्लियर है? ठीक है, चलो. a plus b, what is the value of a is equal to 10 and b is equal to 25? That means here we get 35. मल्टीप्लिकेशन c डिवीजन d, 1 by 1 बताते ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो. क्लियर? तो सबसे पहले हमने ये सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, and the precedence of multiplication and division operator is same. दोनों का जो प्रेसिडेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है. नाउ हियर एसोसिएटिविटी केम इन द पिक्चर. क्लियर? तो एसोसिएटिविटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट. देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कल की जो चार्ट बताई थी वहां पर मैंने बताया था कि जो सेकंड पॉइंट था जिसमें कि हमने कौन से थे उसमें प्री इंक्रीमेंट थे और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर था आई थिंक, और फिर उसके बाद जो हमारा 13 पॉइंट क्या था? असाइनमेंट ऑपरेटर था, और असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वन मोर ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर. इनका जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है? राइट टू लेफ्ट होती है. ध्यान रखना, इन 3 कंडीशन में एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है. किसके में? असाइनमेंट ऑपरेटर में, और जो सेकंड पॉइंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी वो, और कंडीशनल ऑपरेटर. इन 3 केस में जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है? राइट टू लेफ्ट होती है. अब सेकंड पॉइंट में कौन कौन से ऑपरेटर थे वो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर लीजिए. तो वो जो 3 केस थे, 3 पॉइंट था, उन 3 पॉइंट में इंक्लूड मैंने क्या किया? वन मोर कंडीशनल ऑपरेटर, राइट? इन 3 केस में जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है? राइट टू लेफ्ट होती है. और बाकी जितनी दुनिया भर के ऑपरेटर बाकी के जो बचे हैं उनमें क्या होता है? लेफ्ट टू राइट होता है. क्लियर है? ध्यान रखना. देखो कंडीशनल ऑपरेटर ऐड किया हुआ मैंने बोला कि कंडीशनल ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है? राइट टू लेफ्ट होती है. क्लियर है? राइट टू लेफ्ट होती है. अच्छा, ये कब आएगा? फॉर एग्जाम्पल कि किसी एक्सप्रेशन में 2 बार आपने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर लिया है तो वहां पे ये फंडा आ जाएगा फिर एसोसिएटिविटी का
कि आप कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर पहले सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर आप पहले सॉल्व करेंगे, जो राइट साइड में होगा, देन आप लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। क्लियर है। बाकी के जितने रेस्ट ऑफ जितने ऑपरेटर हैं उनका जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा ना। क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है, बट एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। दैट मीन्स कि पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 10, सो 350 डिवाइडेड बाय t। नाउ लास्ट में अब क्या सॉल्व होगा, डिवीजन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 10, सो वी गेट 35. The value of e is equal to 35. So what will be the output of this programming language is 35. So I hope कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। सेम क्वेश्चन में मैं बस एक्सप्रेशन चेंज करना चाहूंगी यहाँ पर, ताकि आपको जितने भी इसके वेराइटी हैं सबके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है। सो 4 एक बता दिया, 3 रिमेन क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है। सेम बस एक्सप्रेशन चेंज करूंगी ताकि आपको इसकी वैरायटी के बारे में पता चले थोड़ा। क्लियर है। सो हियर द एक्सप्रेशन इज a प्लस b इंटू c डिवाइडेड बाई d। अब देखो, अब यहां पर हमने ये जो पेरेंथेसिस ब्रैकेट है 2 बार यूज किया हुआ है, राइट। तो अब यहां पर क्या होगा, हमको ये तो पता है कि ये जो ब्रैकेट है इसका जो प्रेसिडेंस होता है सबसे हाई होता है, नंबर 1 पे था ये ऑपरेटर नंबर 1 पे था। प्रीवियस वीडियो में अगर आपको ध्यान हो तो ये सबसे नंबर 1 पे था ये ऑपरेटर, राइट। दैट मीन्स कि ये सबसे पहले इवेल्युएट होगा। बट यहां पे अब हम ये सोचेंगे कि यहां पे तो 2 बार इस ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, तो कौन सा ऑपरेटर हम पहले सॉल्व करें। तो इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है, अब हम जाएंगे एसोसिएटिविटी पे। देखो, सेम ऑपरेटर अगर 2 बार यूज किया गया है, लाइक अगर हमने एंड ऑपरेटर ही 2 बार यूज किया गया है, लाइक बिटवाइज एंड ऑपरेटर हमने 2 बार यूज किया गया है एक ही एक्सप्रेशन में, हमने लाइक कुछ इस तरह से a एंड b एंड c एंड d, इस तरह से हमने 3 बार एंड ऑपरेटर का यूज कर लिया। दिस इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर, राइट। दिस इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो हमने सेम ऑपरेटर का 3 बार एक ही इक्वेशन में यूज कर लिया। तो अब हम कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा पहले सॉल्व करें और कौन सा बाद में सॉल्व करें। तो इसके लिए भी आपको एसोसिएटिविटी फॉलो करनी पड़ती है। और जैसा मैंने बताया, उन 3 कंडीशन को छोड़ के बाकी की एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। दैट मीन्स कि आप लेफ्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि a एंड b, a एंड दिस इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो पहले a बिटवाइज एंड b पहले सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद जो आउटपुट आएगा उसके साथ इसका फिर ये। तो अगर सेम ऑपरेटर भी एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा बार आया हुआ है तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी फॉलो करेंगे। क्लियर है। ध्यान रखना ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई है, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बता रही हूँ, विद एग्जांपल सारे केसेस बता रही हूँ 1 by 1, तो आपको और अच्छे से रिमेम्बर रहेगा, याद रहेगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे अब हमको पता चल गया कि हमको पहले कौन सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो एसोसिएटिविटी होती है इस ऑपरेटर की, वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। दैट मीन्स कि हमको पहले लेफ्ट वाला सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लिकेशन c एंड डिवीजन d। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। सो 30 वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 10. Now what is the value of d is equal to 10. Now you get the output 35, right? So what will be the output of in this case 35. Clear hai? So let's discuss next variety of this question. So मैं ये बस इक्वेशन चेंज करूंगी। इक्वेशन क्या आता है अब आपके पास, a प्लस b मल्टीप्लिकेशन c डिवाइडेड बाय d। क्लियर है। e इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लिकेशन c डिवीजन d। क्लियर। सो
यहां पर भी 2 बार आपको क्या मिल गया, ये ब्रैकेट मिल गया, तो इसका प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है, हमको ये पता है, यानी कि ये पहले इवेल्युएट होगा। बट 2 बार मिला, यानी कि कौन सा पहले इवेल्युएट होगा। अब आएगी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या बोलेगी, लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स कि लेफ्ट वाला पहले सॉल्व होगा, तो लेफ्ट वाला अगर हमने सॉल्व किया तो क्या आएगा, 35 मल्टीप्लीकेशन सी डिवीजन डी। अब ये सॉल्व करेंगे तो 35 मल्टीप्लीकेशन सी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 0, 10/10, राइट। सो sorry 1 right, so we get 1, so here output is 35। ध्यान रखना कि जो ये ब्रैकेट है उनका जो प्रेसिडेंस होता है हाई होता है, तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन में 2 बार इस ब्रैकेट का यूज किया गया है तो कौन सा पहले सॉल्व होगा, ये हमको बताएगी एसोसिएटिविटी। और अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट होती है, दैट मीन्स कि लेफ्ट वाला पहले इवेल्युएट होगा, देन राइट वाले पे जाएंगे। Clear? Now what is the output is equal to 35. Okay. Let's discuss next scenario. This is the last case actually, B into C division D. Clear? Now A is equal to A plus B into C division D. So as we know that same this bracket has more precedence than other operator, so obviously ये पहले evaluate होगा, that means A plus B into C. What is the value of B is equal to 25 and C is equal to 10, right? So 25 into 10 is equal to 250. So we will get 250. Now the plus operator and division operator is remain, and the precedence of division operator is higher than addition operator, right? Or I can say plus operator, I can say, but we say like this is addition operator, right? So अब ये हम पहले सॉल्व करेंगे। So A plus what is the value of D is equal to 10. Now here we get 25, right? And last the value of A is equal to 10, so we will get output 35. Now this same the output is 35. So यहाँ पे मैंने बहुत सारे सिनेरियो से आपको बता दिया कि किस तरह से सॉल्व होगा। Actually this question is based on precedence and associativity, तो ये क्लियर करना जरूरी था। और एक पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर सेम ऑपरेटर भी यूज किया गया है एक से ज्यादा बार किसी एक्सप्रेशन में, तो भी आप क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी देखेंगे। लाइक अगर प्लस प्लस ऑपरेटर यूज किया गया है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो भी आप एसोसिएटिविटी पहले देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट वाला आप पहले सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्लियर? ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन। int p is equal to 2, int q is equal to 2, int r is equal to p, logical or operator and r, int s is equal to p minus minus logical and operator minus minus q, and we need to print all the value of the variable, like %d, 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 p, q, r, s, right? Return 0. सिमिलर क्वेश्चन एक्चुअली मैंने पहले डिस्कस शायद किया है जब मैंने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया था। मैंने डिफरेंस भी बताया हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में एक्चुअली। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन, R is equal to P logical or
minus minus r, and this is pre-decrement operator actually, and this is logical OR operator. This is logical OR operator and this is bitwise OR operator. Clear? Okay. तो यहां पे क्या होगा, what is the value of p is equal to 2, p is equal to 2, and ये वर्क करेगा जैसे कि अगर मैंने क्या बोला था जब मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया था, तो अकॉर्डिंग टू लॉजिकल OR ऑपरेटर अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। फॉल्स होने के लिए केवल एक ही कंडीशन होगी कि दोनों की दोनों ही कंडीशन क्या हो जाए, हमारी फॉल्स हो जाए। क्लियर? तो यहां पे वैल्यू क्या है, p की 2, और मैंने बोला था कि जैसे कि अगर कोई इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो वो वर्क कैसे करते हैं, वो ट्रू देते हैं, आउटपुट में हमको क्या देते हैं, ट्रू बस। लेकिन अगर आपने 0 यूज किया है, अगर यहीं पर p की वैल्यू 0 होती तो वो वर्क कैसे करता, फॉल्स की तरह वर्क करता, बट वैल्यू क्या है 2, तो यहां पे आपको ट्रू मिल गया, राइट, ट्रू मिल गया। तो 1 ट्रू, दैट मीन्स 1, एंड माइनस माइनस r, what is the value of r, actually no, there is q, actually q, this is q, sorry, my bad, this is q। now what is the value of q is equal to 2, तो यहां पे क्या होगा कि q की वैल्यू क्या है, 2 है, माइनस माइनस यानी कि पहले क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी, दैट मीन्स 1 हो जाएगा और फिर असाइन हो जाएगी। तो हम में से काफी लोग ये सोचेंगे कि वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, अपडेट हो गई, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप q की वैल्यू लेंगे तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, बट दिस इज रॉन्ग। वाई? मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूं कि अगर लॉजिकल OR ऑपरेटर की केस में पहले ही कंडीशन में वैल्यू आपको ट्रू मिल गई तो कंपाइलर आगे सॉल्व नहीं करेगा। यानी कि पहली ही कंडीशन अगर हमको ट्रू मिल गई तो कंपाइलर को पता चल गया कि वैल्यू क्या आनी है, ट्रू ही आनी है, तो वो नेक्स्ट ऑपरेंड की तरफ या नेक्स्ट कंडीशन की तरफ नहीं जाएगा, उसको इवेल्युएट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे Q की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, यहाँ पर R की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। जैसे ही फर्स्ट कंडीशन आपको 1 मिली, कंपाइलर स्टॉप हो जाएगा, आगे इवेल्युएट नहीं करेगा, सेकेंड कंडीशन पे नहीं जाएगा। हाँ, अगर 0 मिली होती तो सेकेंड कंडीशन पे वो इवेल्युएट करता, फिर वैल्यू अपडेट होती। क्लियर है? बट अगर पहली ही कंडीशन ट्रू मिल गई तो सेकेंड कंडीशन इवेल्युएट नहीं करता है कंपाइलर, ध्यान रखना। तो वैल्यू अपडेट नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप Q की वैल्यू को उठाते हैं या लेते हैं तो 2 ही लेंगे, ना कि 1। तो यहां पे R की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, नाउ सेकेंड, S is equal to P minus logical and minus minus Q. Now what is the value of P? Here we use post decrement operator, right? That means कि पहले वैल्यू हम पुट करेंगे, रख देंगे, देन उसके बाद क्या होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय 1 से। दैट मीन्स कि पहले तो आप यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दैट मीन्स कि ये ट्रू की तरह ही काम करेगा, 1 यानी कि ट्रू की तरह ही काम करेगा। क्लियर? एंड माइनस माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ कि पहले वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, देन आप वैल्यू असाइन कर देंगे। तो वैल्यू डिक्रीज हुई 1 से डिक्रीज हुई तो वैल्यू अभी क्या है, 2। ध्यान रखना यहाँ पे P की वैल्यू पहले क्या थी, 2 थी, और अब अपडेट हो चुकी है, वैल्यू क्या हो गई है, 1। जैसे ही ये कंडीशन चल जाएगी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और P की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? और Q की वैल्यू पहले क्या है, 2, और यहाँ पे पहले ही प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, और ये पोस्ट डिक्रीमेंट है एक्चुअली, दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट एंड दिस इज प्री डिक्रीमेंट। तो पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन हो जाती है, देन वैल्यू डिक्रीज होती है 1 से, और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी फिर असाइन होती है। ठीक है? तो यहाँ पे डिक्रीज हो गई, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 मैंने क्या बताया, कांस्टेंट किस तरह काम करता है आपका यहाँ पे सॉरी इंटीजर जितने भी है वो किस तरह काम करेंगे आपके,
ट्रू की तरह। तो ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स कि आपको 1 मिल जाएगा। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p अपडेटेड वैल्यू इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q अपडेटेड वैल्यू इज 1 एंड r इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1। सो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 1 1 1। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया सीखने को मिला होगा। प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।